everyone. So again, I'm here with another set of questions for you. I hope you are covering your these particular sessions of practice questions of MCQs for your UGC NET exam along with me. So we are here doing these MCQs from Unit 3 basically, and topic is about your utility analysis. So with the very next this question following the last session जिसका लिंक टॉप पर दिया गया है, आप पहले लास्ट सेशन कवर कीजिए एंड देन इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आइए जानते हैं हमारे इस गाइडेंस और मेंटरशिप प्रोग्राम के बारे में। क्या आप भी चाहते हैं कि इंटरव्यू के दौरान बाकी कैंडिडेट्स में से आपका ही सीवी टॉप पर चुना जाए, या आपको सीवी बनाने में किसी ऐसी गाइडेंस की ज़रूरत है जो आपकी सभी परेशानियों को दूर कर सके? क्या आपको भी एग्जाम प्रिपरेशन में ज़्यादा समय ना गवाकर पॉइंट टू पॉइंट या एग्जैक्ट प्रिडिक्शन के अकॉर्डिंग ही पढ़ना है? क्या आपको भी डाउट सॉल्विंग ट्यूशन्स महंगे पड़ रहे हैं? तो हम लेकर आ गए हैं 24x7 एंड 1-to-1 डाउट सॉल्विंग सेशंस जस्ट इन ₹299। जी हाँ, सिर्फ 299 रुपये में आप ये सभी सर्विसेज का फ़ायदा ले सकते हैं हमारी सपोर्ट एंड असिस्टेंस प्रोग्राम से जुड़कर। तो अपने फ्यूचर गोल्स को देखते हुए जल्दी से फ़ोन उठाइए और व्हाट्सएप कीजिए नीचे दिए गए नंबर पर। coming to this question, the magnitude of the slope of an indifference curve is the जो indifference curve का ये magnitude होता है क्या शो करता है? It shows the very first option, that is marginal rate of substitution. Alright, then next, at her consumer equilibrium, which of the following conditions hold true for Clarice? Clarice is a girl here. वो अपना consumer equilibrium अगर देखती है तो उसके लिए best options क्या क्या हैं? So here first, Clarice is utilizing her entire budget. Yes, entire budget के according होना चाहिए. Then Clarice has reached the highest level of satisfaction possible within her budget. Budget में उसने अपनी highest position of satisfaction देखिए, तो ये भी true है. Both these statements are true. Then third, Clarice allocates her budget equally among all the goods she purchases. No, बजट को अगर वो इक्वली लगाएगी तो उससे बेटर वो नहीं होता, उसको सेटिस्फैक्शन देखनी है बेटर कहाँ होगी. सो वी विल गो विद ऑप्शन 1 and 2, दैट इज योर कोड डी इज करेक्ट हेयर, राइट. द नेक्स्ट क्वेश्चन, एन आइसो कोस्ट लाइन रिप्रेजेंट. आइसो कोस्ट लाइन क्या शो करती है? इट शोज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू इनपुट्स विच कोस्ट द सेम अमाउंट टू अ फर्म. टू इनपुट्स की कोस्ट देखते हैं और फर्म को जो दोनों इक्वल लगते हैं. सो दैट्स द आइसो कोस्ट लाइन, ऑप्शन बी हेयर. क्वेश्चन नंबर 27th assertion is given to you. एक isoquant curve है, two isoquant curves are drawn convex to the origin due to diminishing technical rate of substitution. इस वजह से होता है. Then ये करेक्ट स्टेटमेंट है. स्टेटमेंट बी पढ़ते हैं. लेसर द कन्वेक्सिटी ऑफ दिस कर्व द ग्रेटर इज द पॉसिबिलिटी ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ टू इनपुट्स. इज दैट ट्रू? नो. सो statement A is correct, but this is incorrect. We will go with option B here. Next is an indifference curve shows. Indifference curve show क्या करता है? Affordable combination of goods. जो goods जो है वो आपको कितने affordable हैं, या relative price, consumption possibilities that a consumer faces, या different combination of two goods. Different combination of two goods among which consumer जो है वो indifferent है, उसको कौन सा choice best पड़ती है वो देखता है. Option D here. Then next, the indifference curve shows combination that yields what it yields. Equal utility, equal output, different output की different utility. So there should be utility in equal terms. Equal utility. Option A is correct. Next question, why do indifference curves not intersect each other? एक दूसरे को intersect क्यों नहीं करते हैं? जैसे यही डायग्राम में तो यहाँ पर क्या होता है, नेक्स्ट indifference curve ऐसा होता है, ऐसा होता है, ऐसा होता है, ये टच नहीं करते एक दूसरे को. Why is it so? Due to the principle of transitivity of preferences, due to optimality condition. So I think option A is correct. हमारी preferences ऐसी होती हैं. Option A. Next, in the context of a short run production function, how does the factor ratio behave? Short run production में factor ratio कैसी होती हैं? They remain constant. Okay, factors remain constant. Option A is correct. If for a producer अगर stage of negative returns आ जाती है to a, like this is your production curve, राइट. तो यहाँ पर जो ये नेगेटिव फॉल होता है गिवन वेरिएबल फैक्टर प्रिवेलिंग, देन जो टीपीपी है, टोटल प्रोडक्शन, टोटल पॉसिबिलिटी ऑफ प्रोडक्शन, वो कैसा रहता है? इंक्रीजिंग एट इंक्रीजिंग रेट, इंक्रीजेज एट डिमिनिशिंग रेट, और कांस्टेंट या फिर फॉलिंग. सो
It increases at diminishing rate. Sorry, that's the thing here. It's like this. एक बार कर्व देख लीजिएगा आप. The point of inflection refers to that point on the total physical product curve from where onwards dash of the total physical product changes. जो हमारा point of inflection होता है, inflection point, यहाँ पर जो TPP total physical product होता है, इसका meaning क्या है? वहाँ पर curvature आ गया है, design आ गया है, patterns आ गए हैं, या none of the above. So it shows curvature, right? The next question, according to the law of returns to factors, द थर्ड स्टेज ऑफ प्रोडक्शन कब बिगिन होती है? थर्ड स्टेज ऑफ प्रोडक्शन, जैसे आपका टीपीपी होता है ना, दिस इज योर काइंड ऑफ टीपीपी. तो जो थर्ड स्टेज, ये फर्स्ट होती है, ये सेकंड, तो थर्ड स्टेज क्या शो करती है? थर्ड स्टेज शोज यू द टीपीपी स्टार्ट्स फॉलिंग. यहाँ पे देखिए फॉल हो रहा है, सो ऑप्शन ए इज करेक्ट. Then next, which of the following statements accurately describes the relationship between average product and marginal product? सबसे बेस्ट स्टेटमेंट क्या शो कर रही है? AP rises when MP is above it and falls when MP is below it. So that's true. Option A is correct here. Next question, the law of diminishing returns जो होता है refers to eventual fall in. Diminishing returns जो है उसमें क्या fall होता है? मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ वेरिएबल फैक्टर्स वो फॉल होते हैं, बाकी सब चीज़ें सेम रहती है. मार्जिनल प्रोडक्ट की वजह से ही टोटल प्रोडक्ट में चेंज आता है. नेक्स्ट क्वेश्चन, गिवन द प्रोडक्शन फंक्शन ये हमें दिया गया 4L + K, लेबर एंड दिस कैपिटल. व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर? मार्जिनल प्रोडक्ट का क्या फॉर्मूला रहेगा? इट्स 4. ये हमारा MP शो कर रहा है, राइट? देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38 फॉर यू हेयर इज the slope of an isoquant tells. स्लोप क्या दिखाता है? द डिक्रीज इन कैपिटल नेसेसरी टू कीप आउटपुट कांस्टेंट व्हेन लेबर इंक्रीजेज बाय 1 यूनिट. ऑप्शन ए ही हमारा करेक्ट है, तो रेस्ट स्टेटमेंट्स रीड करने की नीड नहीं है. देन नेक्स्ट, द एल शेप्ड आइसोक्वेंट जो होता है implies that production requires that the input क्या होना चाहिए? must be used together in certain proportion. B ऑप्शन के साथ हम यहाँ जाएंगे. नेक्स्ट, इफ अ फर्म ट्रिपल्स इनपुट उसके ट्रिपल कर लेती है बट आउटपुट ट्वाइस ही दे रही है, डबल आउटपुट आ रहा है बट इनपुट ट्रिपल यूज कर रही है, तो यहाँ पर ये क्या चीज शो कर रही है? इट शोज दैट देयर इज डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल. मीन्स आप इनपुट तो ज़्यादा यूज कर रहे हो बट आउटपुट आपका डिक्रीज हो रहा है, तो दैट इज डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल. ऑप्शन सी इज करेक्ट हेयर, राइट स्टूडेंट्स? देन नेक्स्ट, द इकोनॉमिक कॉस्ट ऑफ इनपुट इंक्लूड्स. इकोनॉमिक कॉस्ट में क्या क्या आता है? बोथ इम्प्लिसिट एंड एक्सप्लिसिट कॉस्ट, बोथ इट इंक्लूड्स. संक कॉस्ट क्या होती है? इफ वी लुक एट दिस, संक कॉस्ट रेफर्स टू अ पास्ट कॉस्ट दैट कैन नॉट रिकवर. अब हम उसको रिकवर नहीं कर सकते, ऑप्शन ए ही इसका करेक्ट है. देन नेक्स्ट, एन आइसोक्वेंट इज डैश टू एन आइसोकोस्ट लाइन एट एन इक्विलिब्रियम पॉइंट. आइसोक्वेंट क्या होता है? देखिए ये हमारा आइसोक्वेंट कर्व है, ओके और ये आइसोकोस्ट लाइन जिसको हम बजट लाइन बोलते हैं, तो ये क्या है? इससे कन्वेक्स है, कनकेव है, टेंजेंट है. टेंजेंट, राइट? वी विल से टेंजेंट, ऑप्शन सी. देन क्वेश्चन नंबर 44, इफ द मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर इज बिलो द एवरेज प्रोडक्ट ऑफ लेबर, मीन्स MP नीचे है, बिलो AP, इट मस्ट बी ट्रू दैट. किस केस में ये ट्रू होना चाहिए? सो इट मस्ट बी ट्रू दैट मार्जिनल प्रोडक्ट नेगेटिव है. नो, अगर बिलो है तो इसका मतलब ये नहीं नेगेटिव है. मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर क्या जीरो है? नो, इट्स ऑल्सो नॉट ट्रू. एवरेज प्रोडक्ट ऑफ लेबर जो है वो फॉल कर रही है. येस, इट शोज दैट. ऑप्शन सी इज करेक्ट है, राइट स्टूडेंट्स? देन द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन इज वैलिड व्हेन. किस केस में वैलिड होता है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन? इट्स वैलिड इन ओनली वन इनपुट इज यूज्ड एंड अदर इनपुट्स आर वेरिएबल. एक इनपुट फिक्स्ड है, बाकी सब वेरिएबल होने चाहिए, तभी लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन वैलिड माना जाता है, तभी ये वर्क करता है. नेक्स्ट क्वेश्चन, द इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल कैन बी एक्सप्लेन्ड इन टर्म्स ऑफ एक्सटर्नल एंड इंटरनल इकोनॉमीज का मतलब है ये, ऑप्शन ए. देन moving to next question, here we have the law of diminishing returns depend on the assumption. क्या assumption हम लेकर चलते जब diminishing returns है? that technical knowledge is unchanged. यहाँ पर कोई टेक्नोलॉजी का इम्पैक्ट नहीं है, सिर्फ फैक्टर्स की वजह से ऐसा हो रहा है, तो टेक्नोलॉजी को हम यहाँ पर क्या एजम्पशन को मान के चलते हैं. नेक्स्ट, द स्टेटमेंट दैट द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स अप्लाई टू ऑल द फील्ड्स ऑफ प्रोडक्शन वाज स्टेटेड बाय.
डिमिनिशिंग रिटर्न्स जो है वो हर फील्ड में अप्लाई होता है ये लॉ. ये स्टेटमेंट किसने दी थी? सो दिस स्टेटमेंट वाज गिवन बाय एल्फ्रेड मार्शल, इकोनॉमिस्ट एल्फ्रेड मार्शल. Then second last question is the difference in return between a chosen investment and a necessary one passed up in the law of variable proportion. In this indicates negative returns. Okay. Then last question we have, a significant property of Cobb-Douglas production function is that the elasticity of substitutes between input आप कौन सा ले रहे हो उनके बीच की elasticity is always equals to 1. Option A is correct here. So we have done these 50 questions in total for utility analysis, and I hope you have practiced all these things. Thank you for following. Don't forget to share and subscribe. Keep watching. If you have any queries, reach to us. Till then, have a nice day. Thank you.